Oh wait, just a second. So we are going to start this chapter, Semiconductors. It's gonna be a detailed explanation and one shot होगा line by line NCERT का, ठीक है? ठीक है, so requested you all to please join. ठीक है, अच्छा वो इसलिए scroll नहीं हो रहा था. It's again not rotating. Just a second, okay. I hope this page might be visible to you all. So yeah, we are going to start with this chapter. Please join. Before that, let me see if I have taken the material of NCERT and कुछ भी like from this, so this site is very good. Yeah, okay. Now it will be very much helpful. So I'm going to start this chapter. Please join. It's almost 3 minutes, 2 minutes हो चुके हैं. ठीक है. So okay. Semiconductors, electronics, materials, devices, and simple circuits. Let's see. Introduction. मैं लाइंस बोलूँगी, ठीक है, एंड वो इम्पोर्टेंट लाइंस आप सभी को मार्क करनी है अपनी बुक में. सो लिसन वेरी क्लियरली एंड केयरफुली. Devices in which a controlled flow of electrons can be obtained are basic building blocks of all the electronic circuits. हमने पढ़ा है कि कंडक्टर्स जैसे होते हैं डिवाइसेस, मेटल्स हो गए, इनमें क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है. तो वो डिवाइसेस जिसमें कंट्रोल्ड फ्लो रहता है ना करंट्स का, उन्हें हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का. एक सर्किट जिसमें कंट्रोल्ड फ्लो है करंट का, स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है, तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है. Before the discovery of transistor in 1948, such devices were mostly vacuum tubes. ऐसे devices जिसमें कि controlled flow of current था, वैसे devices क्या थे, वैसे devices vacuum tubes थे. ठीक है. Also called valves, जिन्हें हम valves भी कहते हैं, like the vacuum diode. जैसे कि vacuum diode, which has two electrodes. जिसमें कितने electrodes होते हैं? Yeah. So vacuum tubes, like the vacuum diode, which has two electrodes with anode, often called plate, and cathode, triode, which has three electrodes, cathode plate and grid, tetrode and pentode. In a vacuum tube, the electrons are supplied by vacuum tube में electrons कैसे supply होते हैं? Heated cathode, and in a controlled flow of these electrons in vacuum is obtained by varying the voltage between its different electrodes. So इन सब में मुझे ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा. जल्दी पढ़ लेते हैं इनको हम. रीड आउट करती हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी. So
Vacuum is required in the electron space, otherwise the moving electrons may lose their energy on collision with the air molecules in their path. In these devices, the electrons can flow only from cathode to the anode. Therefore, such devices are generally referred to as valves. These vacuum tubes devices are bulky, consume high power, operate generally at high voltages and have limited life and low reliability. ठीक है, तो क्यों देखो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, वाई वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड विथ किसके साथ, वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड विथ, देखो चलो ये वाली लाइन, वाई वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड विथ किसके साथ, सेमीकंडक्टर्स के साथ. द रीजंस आर बल्कि थे, कंज्यूम हाई पावर, इस लाइन को अंडरलाइन करना है, ऑपरेट जनरली एट हाई वोल्टेजेस एंड हैव लिमिटेड लाइफ एंड लो रिलायबिलिटी. सो फ्रॉम हेयर टू हेयर, लाइक ये वाली जो लाइन है, ये पूरी लाइन आप क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, देयरफॉर सच डिवाइसेस, बल्कि ये सब हो गया. ओके, the seed of the development of modern solid-state semiconductors electronics goes back to 1930s when it was realized that some solid-state semiconductors and their junctions offer the possibility of controlling the number and direction of flow of charges carries through them. Similar simple excitations like light, heat, or small applied voltage can change the number of mobile charges in a semiconductor. Note that the supply and flow of charge carriers in a semiconductors में this para is a little bit important, like जिसमें CRT uses आ जाएंगे, LCD के uses आ जाएंगे. So that's why जो important नहीं है lines, I'm just going through them. Okay, so flow of charge carriers in the semiconductor devices are within the solid itself, while in the earlier vacuum tubes walls, the mobile electrons were obtained from a heated cathode and they were made to flow in an evacuated space or vacuum. No external heating or large evacuated space is required to the semiconductor devices. They are सो यहाँ पे लाइन है कि कोई एक्सटर्नल हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो एक्सटर्नल हीटिंग और लार्ज एवैक्यूएटेड स्पेस इज रिक्वायर्ड है बाय द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. दे आर स्मॉल इन साइज, ये साइज में स्मॉल है. ठीक है, दे आर स्मॉल इन साइज, कंज्यूम लो पावर कंज्यूम करते हैं, ऑपरेट एट लो वोल्टेजेस एंड हैव लॉन्ग लाइफ एंड हाई रिलायबिलिटी. ठीक है, ये स्मॉल होते हैं साइज में, कंज्यूम करते हैं लो पावर, ऑपरेट एट लो वोल्टेजेस, हैव लॉन्ग लाइफ एंड हाई रिलायबिलिटी. इनकी बात हो रही है, सेमीकंडक्टर्स की बात हो रही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है. सेमीकंडक्टर क्यों इन्हें रिप्लेस किए गए, ऐसे क्या क्या यूजेस हैं सेमीकंडक्टर्स के. तो द रीजन आर कि दे आर, पहले तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर स्मॉल इन साइज. आपको सबसे पहली चीज सी कन्वीनियंट होनी चाहिए, राइट. तो ये स्मॉल होते हैं साइज में. ठीक है, दूसरी बात कि कंज्यूम करते हैं लो पावर, दे कंज्यूम लो पावर. ठीक है, ऑपरेट एट लो वोल्टेजेस पे ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट एट लो वोल्टेजेस. अगेन मैं शो कर देती हूँ कौन सी लाइन के बारे में बता रही हूँ. दे हैव स्मॉल साइज, दे आर स्मॉल इन साइज, लो पावर, ऑपरेट एट लो वोल्टेजेस एंड हैव लॉन्ग लाइफ एंड हाई रिलायबिलिटी. ठीक है, इवन CRT cathode ray tubes used in television and computer monitors which work on the principle of vacuum tubes are being replaced by liquid crystal display LCD monitors without supporting solid state electronics. ठीक है, तो ये देखो, ये एक यूज आ गया ना, ये एक यूज आ गया किस चीज का, ये एक यूज आ गया इस बात का कि CRT को, जो कि एक वैक्यूम ट्यूब था, CRT जो कि एक वैक्यूम ट्यूब है, उसको भी रिप्लेस कर दिया LCD से, जो कि एक सेमीकंडक्टर है. ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला है कि much before the full implications of the semiconductor devices was formally understood, a naturally occurring crystal of galena is a lead sulfide PBS with a metal point contact attached to it was used as detector of radio waves. ठीक है, चलो इम्पोर्टेंट सेक्शन पे आते हैं हम इस चैप्टर के. हल्का सा इंट्रोडक्शन चाहिए था इसका, 10 मिनट हो गया इंट्रोडक्शन दे देते. दिस इज समथिंग जो पढ़ना है यहाँ से, इसके बाद से इम्पोर्टेंट पोर्शन शुरू होगा. सो क्लासिफिकेशन मेटल्स का, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स के बेसिस पे. किसके बेसिस पे, ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स. ओके, सबसे पहले बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी. क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम मेटल्स का, कंडक्टर्स का और किसका किसका, देखो यस, मेटल्स का,
कंडक्टर्स का एंड सेमीकंडक्टर्स का कंडक्टिविटी के बेसिस पे. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, on the basis of the relative values of electrical conductivity or resistivity, rho is equals to 1 by sigma, the solids are broadly classified as metals. They possess very low resistivity. बहुत ही कम resistivity होती है इनकी. कितनी होती है? 10 to the power -2 से 10 to the power -8. हाई कंडक्टिविटी होती है. ठीक है, ऑब्वियसली मेटल्स है, कम रेजिस्टिविटी होगी तभी तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी ना. सो 10 to the power -2 से 10 to the power -8 ओम मीटर तक की रेजिस्टिविटी होती है. 10 to the power -2 से 10 to the power -8 ओम मीटर तक की इसकी रेजिस्टिविटी होती है. एंड रही बात कंडक्टेंस, तो इसका क्योंकि रेसिप्रोकल होता है ना, दिस इज व्हाट, दिस और अपोजिट वेट, रो इज 1 बाय सिग्मा. ठीक है, इनवर्स ऑफ कंडक्टेंस होता है डेंसिटी, सॉरी रेजिस्टिविटी, राइट. तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? बस -2 से +2, 2 + 8 ओम मीटर, राइट. चलो अब आती है बात, आगे बढ़ते हैं सेमीकंडक्टर्स पे. तो इनकी रेजिस्टिविटी, इनकी लो रेजिस्टिविटी होती है. इनकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है? कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट होती है. इंटरमीडिएट होती है टू मेटल्स एंड इंसुलेटर्स के कंपैरिजन में. ठीक है, इन कंपैरिजन टू मेटल्स एंड इंसुलेटर्स. ओके. 10 to the power -6 से 10 to the power 6 ओम मीटर होती है. 10 to the power -65 ओम मीटर से लेके 10 to the power 6 ओम मीटर तक की होती है. एंड देन 10 to the power 5 से कंडक्टेंस की बात करेंगे तो 10 to the power -6 ओम मीटर, राइट. आगे बढ़ते हैं. इंसुलेटर्स, दे हैव हाई रेजिस्टिविटी होती है इनकी. ठीक है, और कंडक्टिविटी लो होती है, जो कि 10 to the power 11 से लेके 10 to the power 19. तो इसको हम याद कर लें तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा. क्या पता MCQs में आ जाए, कुछ कहना नहीं है, राइट. तो या ये चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखेंगे. सिंपल सी है. उसकी कितनी थी? 5 से -2 से 10 to the power -2 से 10 to the power -8 ओम मीटर तक थी मेटल्स की. ठीक है, और इंसुलेटर्स की हमारे 10 to the power -5 से 10 to the power 8 तक, अगेन 6 तक ओम मीटर तक. एंड देन इंसुलेटर्स की 11 to 19. ठीक है. द वैल्यूज ऑफ रो एंड सिग्मा गिवन अबव आर indicative of magnitude and could well go outside the ranges as well. Relative values of the resistivity are not the only criteria for distinguishing metals, insulators and semiconductors from each other. There are some other differences which will become clear as we go along in this chapter. Our interest in this chapter is in the study of semiconductors, which could be elemental semiconductors, compound semiconductors. अब किस बेसिस पे हम करने वाले हैं? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे. एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स में आ जाएंगे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ठीक है, ये एलिमेंटल हैं. इन्हीं दोनों पे तो पूरा चैप्टर चलना है. सिलिकॉन और जर्मेनियम पे पूरा चैप्टर चलने वाला है, तो इनको तो ध्यान रखना है. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये वो दो हैं सेमीकंडक्टर्स जो कि एलिमेंटल हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. अगर हम बात करते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स की, तो वो हैं हमारे CDS, GAAS, CDSE, INP. ठीक है, CDS, GAAS, CDSE, INP. ये इनऑर्गेनिक है. दे आर इनऑर्गेनिक. अगर हम बात करें ऑर्गेनिक की, तो एंथ्रासीन डोप्ड थैलोसाइनाइंस. ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की पॉलीपायरॉल, पॉलीएनिलिन, पॉलीथायोफीन. ठीक है, ध्यान में रखना है इनको. एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हो गया मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम. कंपाउंड में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आ जाते हैं. तो इनऑर्गेनिक तो ध्यान है CDS, GAAS, ये तो ध्यान में रहेगा, कोई ऐसा मुश्किल है नहीं. CDSE, INP. ठीक है, और ऑर्गेनिक में एंथ्रासीन ध्यान में रखना है. एंथ्रासीन के बाद पॉलीपायरॉल, सॉरी एंथ्रासीन डोप्ड थैलोसाइनाइंस. ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में पॉलीपायरॉल, पॉलीएनिलिन, पॉलीथायोफीन. ठीक है. So most of the currently available semiconductor devices are based on the elemental semiconductors, silicon or germanium, and compound inorganic semiconductors.
However, after 1990, a few semiconductor devices using organic semiconductors and semiconductors in polymers have been developed, signaling the birth of futuristic technology of polymer electronics and molecular electronics. In this chapter, we'll restrict ourselves to study of inorganic semiconductors, particularly elemental semiconductors हम पढ़ने जा रहे हैं. So let's start. सबसे पहले on the basis of energy bands की basis से intrinsic semiconductors, n type and p type. I'm ending this session here only.